Yo, what is up YouTube? Welcome to MasterChef powered by Ritesh Prime 05. And our today's mission is pretty simple. It's to make best ever till now supercalifragilisticexpialidocious paneer tikka. See, I have never ever done this before, but I know a friend who has a lot of experience in this. Hey ChatGPT, I have 180 gram of paneer and I want to make paneer tikka. Explain step by step recipe like a 5-year-old boy can also make. Ingredient 180 gram paneer cut into cubes, 3 tablespoon curd, 1 tablespoon red chili powder, half spoon turmeric, half spoon powder. As our friend told us to do, we have 3 tablespoon of dahi. Coriander powder कौन सा है? 3 tablespoon of red chili powder. I hope ज़्यादा ना हो. Half tablespoon of garam masala. I hope ज़्यादा ना हो. A little bit of turmeric. We got turmeric, nahi cosmetic. Half tablespoon of dhania powder. To be honest, I don't even know if this is dhania powder or not. I'm just little bit of jeera powder. Cut paneer into pieces. So cutting paneer, use a spoon or clean hands to gently coat every piece with the masala paste. So let's do that. We have to make sure that this paste cover every single corner of this paneer pieces. So I think we are all good to go. टेस्ट चेक करूँ बाकी पेस्ट का. I forgot to add up some NaCl, salt. Really don't know what I am doing right now. Let's add some besan. Pack हमारे. Manage. Swaha. Konnichiwa. Moshi moshi. Moshi moshi. Okay, now it's time to cook. First of all, we will add a tablespoon of desi ghee. Babba ghee de aate. I think we will add a little more. Okay. Turn on the flame. And all we have to do right now is to add gently these pieces into the pan. Cook 2-3 minutes on the other side. Cook 2-3 minutes on the other side. So yeah, place the paneer pieces on the pan. Now this doesn't taste good, that because of mummy, because on my side I have done very well. अरे पनीर की सीधी सी कर दी गति मेरी मम्मी ने. What we have to do next? ये तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे चैट जीपीटी भी नहीं बचा सकता. आज तक भाई हमारे जो गड़ी के कुत्ते हैं उनकी बढ़िया पार्टी होने वाली है. ईद के करना है इसका नु बताओ. It's time to taste what the hell we made. So it's review time. बढ़िया है बढ़िया है. 10 में तो
8.5. ये मार्क्स Now it's time for the artist to test his masterpiece. आई विश काश ऐसा कोई नंबर होता जो मैं इसको रेट कर पाता। माइनस इन्फिनिटी भी मतलब इतना छोटा नहीं है इसको रेट करने के लिए। गाइज लेट मी टेल यू कि ये एक्सपेक्टेशन से मतलब बहुत अच्छा होना है, इसलिए मैंने इसको 8.5 रेट कर दिया, क्योंकि लाइक यू नो इसकी बहुत मेहनत लगी थी और बहुत टाइम भी लगाए बनाने में। 8.5 मतलब इतना बेकार टेस्ट नहीं है कि इतना है कि बस उल्टी आ सकती है, इससे ज़्यादा बेकार नहीं। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस और घटिया थी। अपनी वेट ट्रेनिंग सुबह शिफ्ट कर दी है। आज सुबह भी आई हैड अ ग्रेट लेग वर्कआउट सेशन। दैट मीन्स कि शाम को हमारे पास पूरा टाइम होता है हमारे स्टेप्स पूरा करने का और घर पर आकर वापस से वो पढ़ने का, रिवाइज करने का जो हमने लाइब्रेरी में पढ़ के आए हम आज। आफ्टर ईटिंग दैट सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लिडोशियस डिलीशियस डिश, नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर अ वॉक to complete our 10K steps. Till now, I only have completed 3000 steps. That means 7000 more. So, let's go. After 10 calls, me and my brother. आजकल के इन्फ्लुएंसर्स की सच्चाई देखो भाई। रितेश भाई कैमरा। Stay hard. यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है। After walking a lot, I mean completing our 10K steps, finally I'm home. It's 10 pm already, and I am also so much tired right now. Even though I have already uploaded our photoshoot prep day 40, those who know, they know. I have to revise. Before we go to sleep, I have to revise in any case the things we already studied in library today. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर क्लासिक फोटोशूट प्रेप डे 41। जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो धुंध नहीं है, इस सर्दियों का टाइम नहीं चल रहा है। इट्स पोल्यूशन जो कि बहुत तेज़ बारिश आने की वजह से नीचे बैठ चुका है। द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज़ एम्प्टी स्टमक वेट चेक, देन वी गोना ईट समथिंग एज आर प्री वर्कआउट मील, और फिर हम जाने वाले हैं जिम में फॉर आर तगड़ा पुश डे। बॉडी का जो वाटर वेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बाहर जा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। पिछले कुछ दिनों से मेरी डाइट थोड़ी ख़राब हो गई थी। आई वेंट वेरी लीनियंट विद माई प्रोटीन गोल्स, विद माई डाइट, विद माई कैलोरीज, एवरीथिंग। फॉर नाउ चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। सो ऑल वी हैव टू डू इज़ जस्ट जो यस्टरडे है उससे थोड़ा सा बेस्ट करके आज को कंपेयर करना है, और कल फिर से आज को कंपेयर करके अच्छा करना है। दैट्स इट। देखो, एक कोट है कि तुम कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर सकते अनटिल यू ट्रैक इट। सो तुम तुम्हारी डाइट तभी इम्प्रूव कर पाओगे जब तुम तुम्हारी कैलोरीज को काउंट करोगे, उनको ट्रैक करोगे। तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज तभी कम कर पाओगे जब तुमको पता होगा कि वो कितना है और कितना कम हो रहा है, कितनी कैलोरीज खा रहे हो, कितना तुम्हारा बॉडी वेट किस रफ्तार से कम हो रहा है।
So these numbers do matter. Right now I'm eating dal and dahi mixture for our pre-workout meal. So let's complete it and go to the gym. I just came from gym after having 8 by 10 session of our push workout, and right now I'm eating my post workout meal 50 gram of soya chunks and 200 gram of dahi. I know दिखने में बुरे हैं पर believe me खाने में इससे डबल बकवास है. और guess what, पिछले 7-8 महीनों से विदाउट अ डे स्किप डेली इनको खाता हूँ. बॉडी बिल्डिंग का डिसिप्लिन सिर्फ जिम तक सीमित नहीं रहता. आफ्टर जिम वट यू डू ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. क्या तुम खाते हो, कैसे तुम चलते हो, कौन से न्यूट्रिएंट्स तुम लेते हो, हर एक चीज़ बहुत मैटर करती है भाई. हर एक छोटी से छोटी चीज़, न्यूसेंस चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है. राइट नाउ आई एम कम्प्लीटली रेडी टू गो फॉर आवर स्टेनो कोचिंग लाइब्रेरी. घर आएंगे और फिर उसके बाद अपना पैकेज अनबॉक्स करेंगे जो कि है प्रोटीन, क्रिएटिन, प्री वर्कआउट और मल्टीविटामिन्स. अभी के लिए मौसम हो रहा है बारिश का, दैट मीन्स कि मेरे को छतरी लेके जानी चाहिए. सो या जिम डन, कोचिंग डन, लाइब्रेरी डन डना डन डन. नाउ इट्स अनबॉक्सिंग टाइम. अभी के लिए सिर्फ प्री वर्कआउट और क्रिएटिन आए हैं. गैस करो कि इसमें क्या होने वाला है. इसके वेट के हिसाब से लग रहा है इसमें प्री वर्कआउट है. मेरा गैस है प्री वर्कआउट. व्हाट इज़ योर गैस, टेल मी इन द कमेंट. जो हमारा प्रोटीन का डब्बा है और मल्टीविटामिन्स का डब्बा है वो कल आ रहा है. सो अभी के लिए सिर्फ इनसे काम चलाते हैं. ओके, मेरा गैस गलत था, इसमें क्रिएटिन का डब्बा निकला है. क्रिएटिन मैंने 2 महीने का जुगाड़ मंगा लिया ऑलरेडी. इट्स वेलकोर मोनोहाइड्रेट ट्रॉपिकल टैंगो. ये बहुत तमीज़ से खोला मैंने, जिसके पीछे का एक रीज़न है. ये कार्नेज मसल ब्लेस का प्री वर्कआउट वॉज द फर्स्ट प्री वर्कआउट आई एवर बोट. और इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज़ भी जुड़ी हैं. आई मीन आई वॉज सो हैप्पी जब पहली बार प्री वर्कआउट आया था. I was literally dancing. I was that much excited. इस दुनिया में कुछ भी हो जाए पर मेरी मम्मी पतला ना होने दे भाई. मैंने यो हमारा लंच है. अब मना भी ना कर सकते, खाना पड़ेगा. सो लेट्स गो. इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग. आई मीन सामने नारुतो, साथ में खाना, फुल ठंडा चिल्ड कमरा. भाई ज़िंदगी है फुल मजे. इनके सिर्फ 2 टास्क बचे हैं. फर्स्ट 10 के स्टेप्स पूरे करने हैं, जिसके लिए राइट नाउ मैं जा रहा हूँ. और फिर आकर रिवीजन करनी है जो आज हमने लाइब्रेरी में पढ़ा है. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और कमेंट बॉक्स को शेयर कर देना. आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, जय श्री राम दोस्तों.